Hello students, I am Dr. Amit Bhattnagar, working as professor in the Department of Agronomy at GB Pant Institute of Agriculture and Technology, Pantnagar, Uttarakhand. We apply fertilizer for different nutrients. For example, we apply urea for nitrogen, SSP for phosphorus, MOP for potash, zinc sulfate for zinc and sulfur, DAP for phosphorus and nitrogen, and there are a number of fertilizer, and generally we apply only one or two fertilizer. For example, urea is very common fertilizer, and this urea provide only one nutrient, that is nitrogen. When we apply the urea, the only one nutrient is available. Phosphorus, potassium and other nutrients are not available. And when we apply the urea, the color of the crop become change, it becomes green. तो जब हम यूरिया डालते हैं तो क्रॉप का कलर हमें ग्रीन नजर आ जाता है दूसरे तीसरे दिन, तो हमें लगता है बहुत रिस्पॉन्सिव है. बट ऑन द अदर हैंड, अदर न्यूट्रिएंट्स लैक and deficiency starts and crop nutrient requirement is not fulfilled. So that's why we should supply other nutrients through fertilizers. But the major three nutrients which are required by the plant in large quantities are three nutrients: nitrogen, phosphorus and potassium. And other nutrients are sufficient in soil to supply or to fulfill the plant requirement. तो वैसे तो हमको प्लांट्स के लिए 17 न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है. 17 nutrients are essential and some are required in large quantity. In large quantity, CHO, carbon, hydrogen, oxygen, these are available through atmosphere and water. So no need to supply these nutrients through fertilizer. And the other nutrients which are required in large quantity: NPK, calcium, magnesium and sulfur. And other nutrients or micronutrients are required by the plant in small quantity: FeCu, Mn, Zn, chlorine, boron, molybdenum and nickel. And these micronutrient fertilizers are sufficient in soil. तो जो ये micronutrient है ये sufficient है और हमको इसको बाहर से देने की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं होती. जब whenever there is a deficiency, then we supply these nutrients through fertilizer. But these three are required in large quantity. Calcium, magnesium also required in large quantity but not as compared to NPK. तो NPK की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. And for nitrogen we apply urea. और जब हम कोई इस तरह का फर्टिलाइजर डालते हैं जिससे एक या दो न्यूट्रिएंट मिलते हैं, देन प्लांट न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट इज नॉट फुलफिल्ड. तो ऐसे केस में प्लांट की जो रिक्वायरमेंट है फुलफिल नहीं हो पाती है. अब हम अगर यूरिया डालते हैं, व्हेन वी अप्लाई द यूरिया इट प्रोवाइड ओनली नाइट्रोजन. DAP, डाईअमोनियम फॉस्फेट, इट सप्लाई ओनली नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस. MOP, muriate of potash, supply only potassium, and there is no complete fertilizer which provide all the nutrients. तो ऐसा ही इसमें कोई भी हमें नहीं लगे कि जो तीनों न्यूट्रिएंट को एक साथ प्रोवाइड कर दे. एंड दीज न्यूट्रिएंट्स NPK आर वेरी इंपॉर्टेंट. तो मैं वो आज ये बताऊंगा कौन सा ऐसा फर्टिलाइजर है जो तीनों न्यूट्रिएंट को एक साथ प्रोवाइड कर देता है और वो हमको देना चाहिए. तो हमको तो सारे न्यूट्रिएंट ही ऐसे देने हैं कि प्लांट की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाए, लेकिन एक ऐसा हमारा फर्टिलाइजर है जो तीनों ही न्यूट्रिएंट को प्रोवाइड करता है, दैट इज NPK फर्टिलाइजर. तो NPK फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चर्ड होता है, गवर्नमेंट इसको प्रोड्यूस कर रही है, प्रमोट भी कर रही है इन फर्टिलाइजर को, एंड दीज आर नोन एज NPK मिक्सचर फर्टिलाइजर और NPK फर्टिलाइजर. और इसमें जो ऑल थ्री न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट, नाइट्रोजन इज प्रेजेंट, फास्फोरस इज प्रेजेंट, पोटेशियम इज प्रेजेंट, एंड दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रेड. ग्रेड मीन्स कि उसमें कितना परसेंट नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम है. एंड वेरी कॉमन ग्रेड इज 12, 32, 16. अनदर ग्रेड इज 10, 26, 26. अनदर ग्रेड इज 19, 19, 19. इट मीन्स जो, लेकिन जो कॉमन है, बहुत हमारा जो कॉमन है, दैट इज दिस वन 12, 32, 16. तो ये इसके ग्रेड हैं. इट मीन्स अगर हम ये यूज कर रहे हैं, वी आर अप्लाइंग दिस फर्टिलाइजर in the field, then 100 kg this fertilizer provides 12 kg nitrogen and 32 kg phosphorus in the form of oxide. It is not P, it is P2O5, and 16 kg potassium oxide, it is K2O. And when we apply this fertilizer, all the three nutrients are available, while it is not possible in case of urea or DAP. हालांकि यूरिया को हम बाद में यूज करते हैं, लेकिन हमको ये तीनों ही न्यूट्रिएंट एक साथ मिल जाते हैं. सो दिस इज वेरी गुड फर्टिलाइजर विच प्रोवाइड ऑल द थ्री न्यूट्रिएंट्स एट वन टाइम. तीनों हमें मिल रहे हैं. एंड दिस फर्टिलाइजर इज अप्लाइड एज अ बेसल.
बेसल मीन्स एट द टाइम ऑफ द सोइंग, एट द टाइम ऑफ सोइंग, तो हमें सोइंग टाइम पे हम डालेंगे। देन दिस नाइट्रोजन is available, phosphorus is available, and potassium is available, and this nitrogen is important for shoot development, for the leaf development। जो प्लांट की हाइट बढ़ेगी, जो लीव्स निकलेंगी या पौधे की लंबाई बढ़ेगी, दैट इज ड्यू टू नाइट्रोजन। एंड दिस फास्फोरस इज और ये हम कह सकते हैं कि जो फास्फोरस है जो इससे अवेलेबल हो रहा है, दैट इज हेल्पफुल फॉर द रूट प्रोडक्शन। तो इसको आप ऐसे समझें कि सपोज हमने ये फर्टिलाइजर डाला है, एनपी के फर्टिलाइजर अगर हम डाल रहे हैं, मान लीजिए सोइंग टाइम पे हमने डाला फर्टिलाइजर, एंड वी आर अप्लाइंग फर्टिलाइजर, एंड दिस इज द सीड, एंड द सीड germination start, first the root development, then the shoot development, and then the leaf development, and then the flower production, and we are applying the fertilizer at the time of sowing। सपोज हमने इसको सीड के नीचे डाला है या सीड के साथ डाला है, एंड दिस इज द एनपीके फर्टिलाइजर इज देयर, देन नाइट्रोजन इज प्रेजेंट। नाइट्रोजन, इसमें कई केमिकल रिएक्शन होते हैं और फिर नाइट्रोजन अवेलेबल होती है अमोनियम में, नाइट्रेट में। देन फास्फोरस इज प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ orthophosphate or primary phosphate, and potassium is available as a potassium ion, and this nitrogen is required here, nitrogen is required for shoot development। शूट डेवलपमेंट मीन्स लीफ डेवलपमेंट। अगर नाइट्रोजन प्रेजेंट है और उसमें तेजी से पौधे की लंबाई बढ़ेगी, उसमें लीव्स आएंगी, पौधे की लंबाई ज़्यादा हो जाएगी, टिलर्स प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, एंड देन दिस फास्फोरस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रूट डेवलपमेंट। तो जब हमने यहाँ फास्फोरस दे रखा है तो क्या होगा, जब फास्फोरस मिलेगा तो जो रूट्स हैं दे स्टार्ट टू डेवलप, और इनकी रूट की ग्रोथ ज़्यादा होगी तो रूट नीचे तक जाएंगी, एंड प्रोवाइड द स्ट्रेंथ टू द प्लांट। रूट नीचे जाएगी तो नीचे से भी न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन करेगी, मॉइस्चर का एब्जॉर्प्शन करेगी। सो दिस रूट डेवलपमेंट इज हेल्पफुल फॉर द मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन एंड द अदर न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी। तो जैसे ही रूट की स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो शूट की भी ग्रोथ बढ़ेगी। तो जो रूट का जो डेवलपमेंट होता है उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल न्यूट्रिएंट है दैट इज फास्फोरस। तो अगर फास्फोरस की डेफिशिएंसी है, हमने मान लीजिए सिर्फ यूरिया ही डाला है शुरू में, तो रूट का डेवलपमेंट नहीं होगा। पत्तियां तो एकदम से बढ़ जाएंगी, टिलर भी निकलेगा, प्लांट हाइट भी बढ़ेगा, लेकिन चूंकि रूट डेवलपमेंट नहीं हुआ तो लॉजिंग हो जाएगी, उसकी पौधे गिर जाएंगे, क्रॉप गिर जाएगी, लॉजिंग होगी। और अगर रूट डेवलपमेंट हमारा प्रॉपर है फास्फोरस की वजह से, क्योंकि हमने फास्फोरस डाला है फर्टिलाइजर के थ्रू, तो रूट्स प्रॉपर नीचे जाएंगी, तो नीचे जो सॉइल का मॉइस्चर है उसको भी एब्जॉर्ब करेंगी और अदर न्यूट्रिएंट्स को भी एब्जॉर्ब करेंगी। तो जब रूट सही होगी तो शूट का डेवलपमेंट भी सही होगा। देन के जो है ये पोटेशियम जो है, दिस इज नोन एज क्वालिटी एलिमेंट, क्वालिटी न्यूट्रिएंट वी कैन से। जितनी भी तरह की क्वालिटी है प्लांट के अंदर, दैट इज ड्यू टू पोटेशियम। अब अगर रूट बढ़ रही है तो जो भी रिएक्शन हो रहे हैं उन रिएक्शन में एंजाइम को जो एक्टिवेट करता है दैट इज पोटेशियम। तो पोटेशियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंजाइम एक्टिवेशन, whether it is a root development or shoot development, whether it is a photosynthesis, whether it is a respiration, in all the physiological process enzymes are required, and these enzymes are activated by potassium। तो प्लांट का जितना भी रूट डेवलपमेंट है या शूट डेवलपमेंट है, यहाँ बहुत सारे प्रोसेस होते हैं और इन सारे प्रोसेस में एंजाइम्स होते हैं, और ये जो पोटेशियम है इन सारे एंजाइम को एक्टिवेट करता है। तो अगर मान लीजिए हमने नाइट्रोजन दिया, फास्फोरस दिया, and we are expecting that due to nitrogen there will be more shoot growth, more leaf production, and due to phosphorus there is a more root development, but there is a deficiency of potassium, then this nitrogen and phosphorus will not play their role। तो अब नाइट्रोजन फास्फोरस अपना रोल प्ले नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनको जो प्रोसेस हो रहे हैं उसमें एंजाइम इन्वॉल्व है, और एंजाइम की एक्टिविटी के लिए ये पोटेशियम है। तो दिस पोटेशियम इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई पोटेशियम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ओवरऑल ग्रोथ। And other important role of potassium is that it provides different type of resistance in plant। जो resistance आती है प्लांट के अंदर या जो स्ट्रेंथ है वो पोटेशियम की वजह से है। जो इट मेक्स द एपिडर्मिस हार्ड, तो ये शूट की जो एपिडर्मिस होती है इसको हार्ड कर देता है। उस वजह से क्या होता है, जो इंसेक्ट का जो इन्फेक्शन है, इन्फेस्टेशन है, या डिसीज का जो इन्फेक्शन है, जो अटैक होता है डिसीज का या इंसेक्ट का, वो कम हो जाता है। तो स्ट्रेंथ, इट प्रोवाइड द हार्डनेस टू द प्लांट। तो प्लांट को हार्डनेस रहती है, इट प्रिवेंट द लॉजिंग को प्रिवेंट करता है। और जो शुगर्स जो बन रही हैं इसके अंदर, लीफ के अंदर जो शुगर बन रही है वो ट्रांसपोर्ट होती है नई लीव्स में, या फ्लावर में होती हैं, सीड में होती हैं, फ्रूट में होती हैं, उनको ट्रांसलोकेशन करने का काम भी कौन करता है, पोटेशियम करता है। अब मान लीजिए लीफ प्रोडक्शन इज देयर, अच्छी लीव्स हैं,
but fruit size is small because the reason is that sugars are not transported. जो शुगर्स बनी, जो भी हमारा कार्बोहाइड्रेट बना, वो ट्रांसपोर्ट होता है. देखिए, जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है कहाँ होती है? वो लीव्स में होती है. फ्रूट के अंदर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होती है, बहुत कम होती है, हम कह सकते हैं नेग्लिजिबल है. तो फूड के अंदर कहां से वो फोटोसिंथेसिस आए? वो कहां से आए? लीव्स से आए. लीव्स ने उसको बनाया और उसको ट्रांसलोकेट किया. उसको ट्रांसलोकेशन करने का काम कौन करता है? पोटेशियम एंड बोरोन, दो न्यूट्रिएंट हैं. तो अगर पोटेशियम की डेफिशिएंसी है तो वो शुगर सारे कार्बोहाइड्रेट्स लीव्स में रहेंगे, फ्रूट में नहीं जाएंगे. तो हमारे गेहूं का बीज छोटा रह जाएगा, राइस का बीज छोटा रह जाएगा, मक्के के बीज छोटे रहेंगे. जो भी हमारे ग्रेन्स हैं, चाहे भी हमारा कोई फ्रूट है, चाहे भी कोई भी हमारा फल लगा हुआ है, चाहे टमाटर है, बैगन है, मिर्च, सब कैसे रह जाएंगे? छोटे रह जाएंगे, क्योंकि वहां जो है फोटोसिंथेसिस ट्रांसलोकेट हुआ ही नहीं है. तो इस सारा ट्रांसलोकेशन का जो काम करता है, शुगर ट्रांसलोकेशन काम कौन करता है? पोटेशियम करता है. तो अब देखिए, पोटेशियम क्या कर रहा है? सारे एंजाइम को एक्टिवेट कर रहा है, शुगर ट्रांसलोकेशन कर रहा है, एपिडर्मिस को हार्ड कर रहा है, लॉजिंग को प्रिवेंट कर रहा है, एंड देन इट इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉइस्चर रिटेंशन इन द लीव्स. तो जो लीव्स, जब हमारी ड्राई कंडीशन होती है, मॉइस्चर की कमी हो जाती है सॉइल में, तो जो स्टोमेटा की ओपनिंग क्लोजिंग होती है, देखिए जब स्टोमेटा ओपन होते हैं तो वाटर ट्रांसपायर्ड करता है. अगर स्टोमेटा क्लोज रहेंगे तो वाटर का ट्रांसपिरेशन नहीं होगा. अब जो स्टोमेटा की ओपनिंग जो क्लोजिंग होती है, दैट इज ड्यू टू पोटेशियम. तो जो प्लांट वाटर स्टेटस है, दैट इज मेंटेन्ड बाय पोटेशियम. इफ देयर इज प्रॉपर सप्लाई ऑफ पोटेशियम, देन प्लांट कैन सर्वाइव अंडर वाटर डेफिसिट कंडीशन. तो अगर मॉइस्चर की कमी हो भी रही है तो भी पोटेशियम के कारण प्लांट सर्वाइव कर जाएगा ड्राई कंडीशन में, अगर हमने उसको शुरू में दे रखा है. तो ऐसा भी होता है कि जब प्लांट ड्राई कंडीशन होती है तो हम बाद में स्प्रे भी कर सकते हैं, बट दैट इज नॉट सो सक्सेसफुल एज इन केस ऑफ बेसल. तो हम बाद में कर सकते हैं पोटेशियम का स्प्रे, लेकिन वो उतना सक्सेसफुल नहीं होगा जितना हम शुरू में दें. अगर हम शुरू से ही प्लांट की स्ट्रेंथ को मेंटेन रखेंगे तो डेफिनेटली रूट की ग्रोथ प्रॉपर होगी, लीफ डेवलपमेंट प्रॉपर होगा, उसमें जो फ्रूट्स आएंगे प्रॉपर आएंगे, फ्रूट का वेट बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा, और डिसीज भी कम आएंगी, इंसेक्ट्स भी कम आएंगे, लॉजिंग भी नहीं होगी, प्लांट की स्ट्रेंथ रहेगी, वाटर रेगुलेशन भी रहेगा, स्ट्रेस में कंडीशन में भी ये एंजाइम को एक्टिवेट करेगा. सो दिस इज द इंपॉर्टेंट रोल ऑफ पोटेशियम, एंड जनरली फार्मर्स इग्नोर दिस न्यूट्रिएंट. तो जो अधिकतर फार्मर हैं वो पोटेशियम को इग्नोर कर देते हैं, या तो डालते हैं यूरिया या डीएपी, जिसको डाया बोलते हैं. यूरिया में नाइट्रोजन है, डाई अमोनियम फॉस्फेट में नाइट्रोजन और फास्फोरस है, पोटेशियम है ही नहीं. एमओपी में है लेकिन एमओपी नहीं डालते. तो अगर हम ये कंप्लीट फर्टिलाइजर डालना है, एनपीके फर्टिलाइजर हम डालना है, then it supply all the three nutrients. So this is the advantage of this fertilizer, that it provide all this NPK major nutrient. These are known as primary nutrients which are responsible for good growth of plant. तो इसका मतलब अगर हम ये फर्टिलाइजर डालना है तो फिर हमें फास्फोरस या पोटेशियम के लिए कोई दूसरा हमें डालने की जरूरत नहीं है. तो और बाद में जो जैसे जैसे प्लांट की स्टेज बढ़ती है, जो नाइट्रोजन की हम सप्लाई करते हैं फिर हम यूरिया के थ्रू करते हैं, एनपीके फर्टिलाइजर के थ्रू नहीं करते. एनपीके फर्टिलाइजर याद कर लीजिए, इट इज अप्लाइड एज अ बेसल. इसको बेसल का मतलब यह है कि एट द टाइम ऑफ सोइंग इसका स्प्रे नहीं करना है, इसका स्प्रे नहीं करेंगे. इसको बेसल सॉइल में एप्लीकेशन में डालने हैं. मान लीजिए डेफिशिएंसी आ जाती है नाइट्रोजन की, तो यूरिया का स्प्रे कर देंगे या दूसरे माइक्रोन्यूट्रिएंट का स्प्रे करेंगे. इसका स्प्रे नहीं करना है, इसको बेसल ही डालना है. अगर हम डाल देते हैं ये फर्टिलाइजर, उसकी एक कैलकुलेशन होती है, कितने कौन सी क्रॉप है, हमारी सॉइल टेस्ट वैल्यू क्या है, उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करके डाला जाता है. अब मैंने इसको ग्रेड बता दिया कि ग्रेड का मतलब क्या होता है. अगर सपोज ग्रेड इज सपोज 10 26 26 सपोज, सो इट मीन्स 100 kg दिस फर्टिलाइजर विल प्रोवाइड 10 kg नाइट्रोजन, 10 kg नाइट्रोजन एंड 26 kg P2O5 एंड 26 kg K2O. अब आप सोचेंगे इसका सम करें तो 100 आना चाहिए, ऐसा नहीं होता है. ये न्यूट्रिएंट की क्वांटिटी है, बाकी क्वांटिटी फिलर होती है, दूसरे इनर्ट मटेरियल मिलाया जाता है. ऐसा नहीं है कि इसका सम 100 ही आएगा, ऐसा नहीं होता है. ये क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिएंट है. तो इसका मतलब यह है कि अगर हम ये फर्टिलाइजर डालना है तो हमारे लिए ये बहुत ही अच्छा फर्टिलाइजर है. तो फार्मर्स को भी बेसल में इसी फर्टिलाइजर को डालना चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे बेसल इसलिए डालना है क्योंकि धीरे धीरे सॉल्युबल होता है, और सॉल्युबल होकर धीरे धीरे जैसे जैसे सीड की ग्रो बढ़ेगा, जर्मिनेशन होगा, इमरजेंस होगा, प्लांट बढ़ेगा, रूट बढ़ेगा, धीरे धीरे ये अवेलेबल होता जाएगा. अगर हम इसको बाद में डालेंगे तो क्या रहेगा, ये फर्टिलाइजर यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे आ जाएगा ऊपर ही. हम मिट्टी में कितना मिक्स करेंगे, ये पूरा रूट जोन में नहीं आ पाएगा. अगर मान लीजिए रूट जोन में अब कैसे करेंगे, तो कट जाएगा पौधा, फिर मिलाएंगे कैसे इसको, ये तो यहाँ पे रह जाएगा, सरफेस पे रह जाएगा. बहुत पानी के साथ जाएंगे, गुड़ाई करेंगे तो यहाँ तक आएगा, बहुत नीचे तक जा नहीं पाएगा, जबकि फर्टिलाइजर कहाँ चाहिए, रूट में चाहिए. तो इसका मतलब कि हमको ये फर्टिलाइजर बेसल यूज़ करना चाहिए.
यूरिया को हम क्यों बाद में डाल देते हैं, टॉप ड्रेसिंग कर देते हैं? मान लीजिए यूरिया हमने डाला, ये क्वेश्चन आ सकता है कि इस फर्टिलाइजर को तो नहीं डाल रहे लेकिन यूरिया को डाल रहे हैं। यूरिया इज हाईली सॉल्युबल, वो पानी में बहुत जल्दी घुल जाता है और पानी के साथ ये घुल करके कहाँ जाता है, नीचे मूव करता है एंड देन इट रीच इनटू द रूट जोन, बट इट इज नॉट सो हाईली सॉल्युबल। ये फर्टिलाइजर इतना सॉल्युबल नहीं है कि पानी के साथ तुरंत घुल के नीचे चला जाए। यूरिया हाईली सॉल्युबल है, तो अगर हमको यूरिया बाद में डालने की जरूरत पड़ती है तो हम ऊपर से टॉप ड्रेसिंग साइड ड्रेसिंग कर देते हैं, लेकिन इस फर्टिलाइजर को नहीं करते हैं क्योंकि इतना हाईली सॉल्युबल नहीं है। सॉल्युबल है लेकिन इतना नहीं जितना कि यूरिया है कि वो इतना घुल के रूट जोन तक पहुंच जाए। इसलिए दैट्स व्हाई वी शुड अप्लाई दिस फर्टिलाइजर एट द टाइम ऑफ sowing. So this fertilizer is a very good fertilizer because it provides 3 important nutrient NPK. तो हमें ये फर्टिलाइजर यूज़ करना चाहिए, पूरी रिलायंस हमारी यूरिया DAP पे नहीं होनी चाहिए। अगर हम ये फर्टिलाइजर डालते हैं तो हमारा NPK मिल जाता है और इसकी हमें कैलकुलेशन होती है, उसके अकॉर्डिंग ही इसको डालना चाहिए। ऐसा सच नहीं ब्लैंकेट डाल दिया। क्या हमारी क्रॉप है, क्या सॉइल हमें सप्लाई कर रही है, कितनी हमारी रिक्वायरमेंट है, इसकी कैलकुलेशन होती है, उसके अकॉर्डिंग यूज़ करना चाहिए। बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट वी शुड यूज़ दिस NPK फर्टिलाइजर। अगर हमारे घर में पौधे लगे हैं, गमले लगे हुए हैं, उसमें हमने कुछ फ्लावर प्रोड्यूस कर रहे हैं या धनिया पालक कोई भी हम घर में कर रहे हैं, किचन गार्डन हम कर रहे हैं, तो भी हमें इस फर्टिलाइजर को जब हम बीज बोते हैं तो मिट्टी में ये फर्टिलाइजर मिलाना चाहिए ताकि ये सारे न्यूट्रिएंट उसको मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।